Hi everyone, welcome back to my channel. So just give me 5 minutes and बस 5 मिनट में I promise you will understand that why you suffer so much in relationships and why is it that you are the one always ending up hurting yourself. Why are you feeling that pain again and again whereas opposite side से उतना आपको कुछ लगता ही नहीं है. It's always you are the one who is suffering. Point number one, you love with real intention, with a lot of purity, but at the end, the opposite end, they love with convenience because they are just comfortable with that feeling that you're giving it to them. Now the problem क्या है पता है यहाँ पे कि you know that what hurts the most actually, you always show up with real heart. आपका intention बहुत clear है चीज़ों को लेके कि if I am liking this person, if I am loving somebody, I should end up with this person no matter what. अगर कोई भी problem भी आ जाती है, no matter what the problem is, I am going to work and sort it out. This is what is like purity कि आप वो बंदे को जाने नहीं देना चाहते, instead you want to protect your relationship. When you love someone, you don't calculate. Simple है ये. Okay, you can't calculate love. You don't wait for the right moment. You don't think, should I do this? Like, will the person like it? You just do it. You just do it. Okay, you just give, and you give with honesty, with purity. But the person on other side, they love you when they are comfortable, when they want. They are like season. Okay, आज मन किया मैसेज कर दिया, फिर उसके बाद में कल नहीं किया तो कल नहीं किया, फिर परसों 3 दिन के बाद में ना उनका मूड अच्छा है तो दे विल टेक्स्ट यू. यू नो it's they are just giving you time only when they feel when they miss that emotion that you have been providing it to them. So you care every day, they care only on the days they feel lonely. And that difference, that gap, जो gap है आप दोनों के बीच में, ये intention का gap है. आपका intention चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा clear है, उनका intention कुछ clear नहीं है चीज़ों को लेके, वो आपका बहुत बुरी तरीके से काट रहे हैं. It's just because you are allowing them, they keep doing that. And that is where your suffering begins, because आप किसी को क्यों अलाव कर रहे हो? आपका पीस ऑफ माइंड खराब करने के लिए. बिकॉज आप तो पावरफुल हो, बिकॉज योर लव इज सो पावरफुल दैट आप ना इन प्योर इंटेंशन से चीजें कर रहे हो. बट जब सामने वाला नहीं ले रहा है, देन व्हाई आर यू जस्ट बीइंग द गिवर? आप क्यों नहीं रोक रहे हो वहां पे? सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू जस्ट नीड टू स्टॉप giving that unlimited love to someone who gives you selected moments. Like, आज मन किया कल मन नहीं किया. व्हाट इज दिस? कौन से भी रिलेशनशिप में ऐसे नहीं होता. जस्ट मैच देयर एनर्जी, मैच देयर पीस. टेल योरसेल्फ दैट माय लव इज रियल. इफ समवन वांट्स मी, दे विल हैव टू मीट मी विद क्लैरिटी एंड दे विल चूज मी नो मैटर व्हाट. एंड आप फील करोगे उस रिलेशनशिप में जहां पे आपको आप फील नहीं हो रहा है, वेर यू आर जस्ट ट्राइंग टू प्रिटेंड सो दैट दैट पर्सन विल नॉट रन अवे, दे विल नॉट लीव यू. इस फियर से अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो ना, आई थिंक that you need to understand suffering का reason वो नहीं है, suffering का reason आप खुद हो, because आपको कहीं ना कहीं डर है वो इंसान छोड़ के चला जाने का. You need to work on yourself. Now point number 2, you believe that if you try a little more they will change. ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता बहन, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता. आप किसी इंसान को नहीं बदल सकते. कोई जो इंसान खुद को चेंज करना चाहता है वो खुद से तभी चेंज होगा. When you try to change, it's not going to work. You can't change anybody. You can just change your thought process, yourself. You can only work on yourself. Now this is the biggest wound I feel, because somewhere inside you keep telling yourself, maybe if I am little more patient, maybe ये चीज काम करेगी. Maybe if I understand them a little more, maybe if I forgive this one last time, maybe if I adjust little more, they will change. ये क्या है? What is this? In any relationship, why it is like maybe? जहाँ maybe आ गया वहाँ पे भाई तुम्हारा कट रहा है, बट तुम वो चीज को अलाव कर रहे हो. You are the one who is trying to protect the relationship. You are giving them the chances again and again which they don't deserve. You keep giving explanation which they don't need any. उनको जरूरत भी नहीं है explanation की, आप ही दे रहे हो. You keep giving love even when you are so exhausted just to protect that relationship. But the truth here is, ये सारी हरकतें करके ना, यू आर ब्रेकिंग योर सेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग समवन हु डजंट वांट टू बी फिक्स्ड. लाइफ में कोई भी चीज़ बाहर जो होती है हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते. जो चीज़ हमसे रिलेटेड हो, खुद से रिलेटेड हो, हम उसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. बस इतना याद रखो. यू आर बिकमिंग देयर इमोशनल होम, जहाँ पे उनको इतना कंफर्टेबल फील हो रहा है कि वो उस कंफर्ट जोन से बाहर जाना नहीं चाहते. वाइल दे आर नॉट इवन बिल्डिंग दैट डोर फॉर यू टू एंटर. मतलब आप कंफर्ट जोन दे रहे हो, वो कंफर्ट जोन में अच्छा एंजॉय कर रहे हैं. अब उनको ऐसे लग रहा है कि अगर उनको ये द मोमेंट दे फील लाइक ये बंदी तो छोड़ के चली जाएगी, दे विल कप रनिंग, बिकॉज मीठे मीठे वर्ड्स लेकर आ जाएंगे, एंड देन अगेन यू फॉल इन द ट्रैप.
एंड दैट साइलेंट होप जो होता है ना, मे बी शायद अब बंदा चेंज हो गया होगा, नाउ आई थिंक लाइक द पर्सन इज चेंज, दैट बिलीफ, यू नो, दैट वन डे दे विल रियलाइज एवरीथिंग. That is why you suffer the most. Because why do you want to make somebody realize your worth? आपकी वर्थ आपको खुद को पहचाननी है. जहां पे आपको अपनी वर्थ को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, what kind of a relationship is that? Stop trying to repair a person who isn't even holding the broken pieces that you have. Accept what they are showing you right now. Tell yourself this one thing: if a person wanted to change, they would have already started. My effort cannot replace their comfort zone. My effort cannot, you know, change them as a person. They will change only if they want to change. Because I have seen, you know, relationships जहाँ पे both of them were not so real, जहाँ पे दो लोग ना broken है, they are not properly healed, but अपने आप को इतने अच्छे तरीके से उन्होंने मोल्ड कर लिया है, चीज़ों पे इतने अच्छे तरीके से काम कर लिया है, that relationship is working. That's what I keep telling, कि don't just do it, like let it happen from both the end. Now point number 3, you expect like emotional intelligence from a person who is not even like emotionally mature, like you're dealing with a man child is what I wanted to tell. You go into a relationship with the depth, मतलब you have so much to give, you want honesty, you are giving honesty, you want communication, you believe in communicating, you are giving clarity because you feel जो चीज़ बात करके sort out हो सकती है, बात करके sort out करो. You are giving them the stability that I am not going to go anywhere else apart from you. But the person you choose, they are not ready for that. They don't know how to handle feelings. They are running away from their own feeling. वो उनको खुद को पता नहीं कि वो क्या चाहते हैं. They don't know how to express. They don't know how to be consistent. They just don't know because they are coming with their traumas, their baggages, जो वो अपना बैगेज आपके सर पे भी डालेंगे. मैं ये नहीं कह रही कि इंसान बदलता नहीं है. इंसान देखो हर कोई अपना एक ट्रॉमा से गुजर ही रहा है, बट इंसान में अगर ये चीज़ ना हो ना कि आई नीड टू चेंज, वैसे इंसान के साथ में भाई किस लेवल की भी रिलेशनशिप तो छोड़ो, दोस्ती का द भी रखना नहीं चाहिए. यू जस्ट आस्क फॉर क्लैरिटी फॉर देम. इट फील्स लाइक इट्स अ बर्डन. मतलब क्या क्लैरिटी दे दूँ? क्लैरिटी के नाम पे हक देते हैं ये सारे लोग. यू वांट अ पार्टनरशिप, दे वांट अटेंशन एंड ड्रामा. जो इंसान आपको रखते हुए 10 जगह से अटेंशन सीख कर रहा है, एंड देन एंड ऑफ द डे द पर्सन इज मेकिंग यू फील दैट यू आर द वन बीइंग वेरी स्वीट, बट एक्शन में वो अटेंशन सीख कर रहा है, हर किसी से बात कर रहा है, वो किसी को कट ही नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो. So do you really think that you only need to invest in that relationship? And without even realizing, you know, you start like expecting that maturity from someone. अरे चलो it's okay, अपना ही है, होते रहेगा and blah blah blah. You like, you know, you don't understand that कि उसने अभी खुद को ही नहीं पहचाना है जिस लेवल पे आपने अपने आप को पहचान लिया है. तो उस रिलेशनशिप में रहने का कोई तुक्का ही नहीं है यार. सो स्टॉप लोअरिंग योर इमोशनल स्टैंडर्ड. अगर वो यहाँ पे है, आप यहाँ पे हो, उसको मेहनत करने दो आपके लेवल को मीटअप करने के लिए. आप अपना लेवल नीचे मत करो. स्टॉप श्रिंकिंग योर हार्ट बिकॉज यू आर रियल, यू आर प्योर. और जो इंसान सही में ये डिजर्व करता है ना, उसको ये सारी चीज़ें इन रियल जब आप दोगे, उसको समझ आएगी. इफ समवन कैन नॉट लव यू एट योर लेवल, यू डोंट नीड टू लोअर योर लेवल. अंडरस्टैंड दिस वन थिंग. जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने आप को प्रूव करने के लिए, जहाँ पे आप अपने स्टैंडर्ड्स को नीचे खींच के लेके जा रहे हो, वहाँ पे आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती. एंड इफ इन केस यू एनी टाइम मीट अ पर्सन जहाँ पे उसका स्टैंडर्ड यहाँ पे, बट बंदा मेहनत कर रहा है आपके स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए, इमोशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए, आई थिंक वहाँ से चीज़ें समझ आती है कि अरे भाई बंदे में दम है, बंदा मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, द पर्सन इज चूजिंग मी, द पर्सन वॉन्ट्स मी इन देयर लाइफ. तो वहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाती है. जो बंदा बात ही नहीं करना चाहता, वहाँ से कट लो भाई, कट लो. लाइक यू नो, द मोमेंट यू स्टार्ट रेस्पेक्टिंग योर ओन हार्ट, your suffering will stop. You know, your healing will begin right at that moment. Because आपको पता है कि you are very pure. आप जो दे रहे हो वो बहुत प्योर है. और जो इंसान जो प्योरिटी समझ सकता है, वही चीज़ को वो एक्सेप्ट करेगा. वही इंसान ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट करेगा. जो इंसान इतना थका हुआ है, जो इंसान मतलब अभी बस मज़े कर रहा है, दूसरों के इमोशंस के साथ खेल रहा है, ऐसे इंसान को भाई हम चाह कर भी बदल नहीं सकते. एंड व्हेन यू आर डीलिंग विथ सच पर्सन, जस्ट लीव दैट प्लेस. जस्ट लीव दैट प्लेस. डू दिस फेवर टू योर सेल्फ. तो मैं यही कहूँगी. इसीलिए जस्ट बिकॉज यू आर अलाउिंग इट, द पर्सन इज हर्टिंग यू, एंड दैट इज वाई यू आर सफरिंग, बिकॉज यू वॉन्ट टू सफर. दैट इज वाई यू अलाउिंग दैट पर्सन टू मेक यू फील दैट सफरिंग. I hope you got the clarity. Just like, you know, choose yourself and let the right one come into your life. Make that space for the right one to get into your life. I hope this helps, and bye.